Narayan. In this video, I have picked up a small event from the Kurukshetra war of Mahabharata. This event is a very famous one. It is the fighting between Arjun and Karna, the two foremost warriors of the Kurukshetra war, barring, of course, Bhishma Pitama and Drona. If you take these two out, these two are the foremost, and they can actually kill the entire lineage of all their enemy ranks. They can kill the entire enemy ranks. Such prowess do they possess, both of these, because they are all equipped. They both are equipped with all the knowledge of the divya, of the divine missiles presided over by many gods: Agni Dev, Varun Dev, Kuber Dev, Yamadev, Brahma Dev, and all other missiles, various missiles presided over by all these gods and the demigods. So this event is a very instructive one. This is the major event where the left wheel of the chariot of Karna gets swallowed by the earth, and then Karna gets down to pull up that wheel, and then at that time he provokes the Kshatriyahood of Arjun, and he asks him to refrain from releasing missiles, because he says that if you're a true Kshatriya, you would not release your missiles on someone who is not carrying his weapons. I am not carrying my weapons. I am busy lifting up my wheel from this earth. So stay a while, stay put for a while. I will again fight with you until I don't pull up this wheel from this earth. So at that time, Sri Krishna is listening to both these gentlemen, these warriors, and then Sri Krishna gives a beautiful message to Karna. And this message is the one which I want to convey to you. And this message clearly informs us of the importance and the efficacy of time and place, and one's duty. Time, place, and duty. These three defines what is dharma and what is adharma. At times it happens that dharma gets converted to adharma, and at times it happens that adharma gets converted into dharma. This is what is to be meant by this message. So this is a very subtle and sublime message of this scripture, of this event. And if we learn this sublime message of Sri Krishna, we can actually save ourselves from the commitments of adharma. We can actually refrain from adharma when we see that it is actually dharma. So this misconception about dharma being understood as adharma and adharma being represented as dharma, this is being cleared by this particular message. ये जो वीडियो के लिए मैंने एक प्रसंग लिया है, ये प्रसंग है कुरुक्षेत्र के मैदान से लिया है, और ये बहुत ही प्रख्यात प्रसंग है। अर्जुन और कर्ण के बीच में जो युद्ध होता है, घमासार युद्ध होता है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। ऐसा लगता है कि स्वयं इंद्रदेव और सूर्यदेव ही एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हैं। अर्जुन है वो इंद्रदेव के पुत्र है, कर्ण है वो सूर्यदेव के पुत्र हैं, तो दिव्य देवों के पुत्र हैं, तो उसमें कुछ कमी होती ही नहीं है। और ये दोनों एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हैं, और दोनों कुरुक्षेत्र के मैदान से बहुत दूर जा चुके हैं, मगर दोनों इतने मग्न है एक दूसरे को मारने में, युद्ध और वध करने में, कि उनको पता ही नहीं है कि श्री कृष्ण कहाँ लेके गए उनको, कहाँ बाहर कुरुक्षेत्र के मैदान में कहीं बाहर लेके गए, और युद्ध चालू ही है। एक दूसरे के ओर तीरों की वर्षा हो ही रही है। और ऐसा होता है कि कर्ण जो है वह एक बार अर्जुन के जो बाण का जो धागा है उसको तोड़ डालते हैं, तो दूसरा धागा तुरंत ही अर्जुन बांध लेते हैं, दूसरे को भी तोड़ डालते हैं, तीसरा बांधते हैं, चौथा बांधते हैं, तो सब धागे जो अर्जुन लगाते हैं तो कर्ण तोड़ते जाते हैं। ऐसे 10 बार धागे लगा के तोड़ देते हैं। तो आप ये देखिए कि हमारा जो शस्त्र ज्ञान था, द्रोणाचार्य ने जो शस्त्र का ज्ञान दिया है सभी पांडवों को, कौरवों को, और कर्ण ने जो परशुराम भगवान से सीखा है, तो आप सोचिए कि उनका निशाना उस समय का कैसे था। केवल 5000 वर्ष पहले की ही बात है। तो आप सोचिए कि बाण भी नहीं, तीर भी नहीं, मगर अर्जुन भी कोई अंग भी नहीं, मगर केवल और केवल उसका जो बाण का धागा था उसी पर प्रहार कर्ण ने किया, और 10 बार 10 बार धागा ही तोड़ दिया। तो ये इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो शस्त्र का ज्ञान था, जो मंत्रों का ज्ञान था, क्योंकि मंत्र उच्चारण से ही
तीर छोड़े जाते थे, और मंत्र में इतनी शक्ति थी कि जो मंत्र बोलने के बाद तीर जो छोड़े जाते थे वह अपने गंतव्य तक पहुंचे बिना नहीं रहते थे। और रामायण में इसका व्याख्यान है कि जो मंत्र है, मिसाइल्स जो होती है, जो जो तीर होते हैं, तो वो अलग अलग दिव्य अस्त्र होते हैं। अग्निदेव के होते हैं, वरुण देव के हैं, यमदेव के हैं, कुबेर देव के हैं, ब्रह्मदेव के हैं, गंधर्वों के हैं, विद्याधरों के हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे अलग अलग अस्त्र है, दिव्य अस्त्र जिसको कहते हैं। तो वह स्वयं ही एक ऋषि के सब पुत्र है, वह तीर के रूप में वहां पर प्रत्यक्ष वहां पर है। और राम भगवान भी जब भी उनको बुलाते थे, मंत्र से बुलाते थे, तभी वो आ जाते थे, और मंत्र बोलते ही वह तीर में ऐसी दिव्य शक्ति आ जाती थी कि दिव्य बाण को छोड़ते ही, तीर को छोड़ते ही फिर उसके गंतव्य तक पहुंचता ही था। तो ऐसा सामर्थ्य था। और आज यहाँ पर हम इस समय में ओलंपिक में हम शूटिंग का जो प्रतियोगिता होती है उसमें हम निशानेबाजी करते हैं, तो उसमें भी सबको गोल्ड मिलता है, तो हम स्वाभाविक है कि हम सब उत्साहित होते हैं इंडिया को अगर गोल्ड मिलता है। मगर हमें ये सोचना है कि हमारे जो शास्त्र में जो शस्त्र का ज्ञान था वो कितना महान ज्ञान था, कितने निपुण थे लोग। और महाभारत में लिखा है अर्जुन एक ही ऐसे योद्धा थे जो दोनों हाथों से बाण चला सकते थे, ऐसे निपुण थे, दोनों हाथों से बाण चला के तीर को अपने शत्रु पर फेंक देते थे, रिलीज करते थे। तो ऐसे निपुण थे अर्जुन, दोनों हाथों से। लगभग कोई नहीं था ऐसा, पूरे कुरुक्षेत्र के मैदान में एक ही अर्जुन ऐसा माइका लाल था जो दोनों हाथों से अपना बाण चलाने में निपुण थे। तो आप सोचिए कि एक हाथ को कोई अगर कुछ हो गया है तो वो दूसरे हाथ से भी कुछ कर सकते थे। तो ऐसा ऐसा सामर्थ्य हमारे सब शत्रुओं, हमारे शास्त्रों में था। हमारे सब जो गुरुकुलों में सिखाया जाता था, गुरु सब शस्त्र विद्या भी देते थे, शास्त्र के साथ शस्त्र विद्या अनिवार्य थी। तो ये हम कहाँ से कहाँ आ गए, ये भी एक हमको सोचना है, बहुत गहराई से सोचना है कि हम आज क्या पढ़ा रहे हैं हमारे बच्चों को, हम क्या पढ़ा रहे हैं, और पहले के गुरुकुलों में क्या पढ़ाया जाता था। क्या हम हमारे बच्चों को ऐसे ही एकदम बस वीडियो गेम खेलने के लिए बड़ा कर रहे हैं, या मैदान में अगर ऐसा कोई अवसर आए कि वह एक अर्जुन की भांति भी लड़ सके, ऐसा ऐसी भी विद्या हम दे सकते हैं, ऐसे कोई गुरु है? तो ये हमें बहुत ही गहराई से सोचना है कि कैसा कैसा शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान दिया जाता था। तो फिर हम वापस आते हैं कि कर्ण ने 10 बार वो धागे को तोड़ दिया, और 11वीं बार अर्जुन ने फिर धागा लगाया, और फिर अर्जुन ने भी ऐसी वर्षा की तीरों की कि कर्ण भी स्तब्ध रह गए। कर्ण, इधर लिखा है कि वर्णन में है कि कर्ण को पता भी नहीं चल रहा था कि कब वो धागा लगा रहा था और कब उसने तीर उसके तरफ फेंक दिए। तो अभी कर्ण तैयारी करे उसके पहले तीर उसके पास आ जाते, छाती को छू लेते थे। तो ऐसा सामर्थ्य, ऐसी अलाकृति, ऐसी गति इसमें अर्जुन के पास थी। तो ये भी हमें सीखना है। तो ऐसा ऐसा युद्ध चलते गया, और होता है यूं कि कर्ण का जो रथ है उसका जो बायां पहिया, लेफ्ट जो व्हील होता है, वह धरती में अंदर घुस जाता है, धरती को प्यारा हो जाता है आधा। तो उसका रथ जो है वो बाईं ओर झुक जाता है, और वो तुरंत नीचे उतरते हैं और फिर प्रयास करते हैं कि अपने दोनों हाथों से वह पहिए को ऊपर उठा ले। और उसी समय फिर अर्जुन को वो क्षत्रियपन उनका याद दिलाते हैं कि अर्जुन, आप क्षत्रिय हो, आप एक कायर न बनो, आप मुझ पर, मैं निशस्त्र हूँ। एक सच्चा क्षत्रिय क्षत्रिय वो होता है जो धर्म का पालन करे। धर्म में कि ये नियम है कि कोई भी जो सेना लड़ रहा है, कोई भी रथी है, वह ऐसे किसी सैनिक पर प्रहार नहीं करता है जो रणभूमि से भाग रहा है, जिसकी पीठ पर अगर कोई वार करता है, जिसने शस्त्र छोड़ दिए हैं, जिसके पास शस्त्र नहीं है, जो लहूलुहान है और वह अर्ध मृत्यु की दशा में है, उस पर तीर नहीं चलाए जाते हैं। और मैं तो निशस्त्र हूं, तो आप रुकिए कृपा करके, मैं अब ये पहिया निकाल लूं, फिर मैं आपसे युद्ध करने के लिए सज्ज होता हूं, तब तक आप ठहरिए। और श्री कृष्ण देख रहे हैं, दोनों को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और अर्जुन भी फिर रुक जाते हैं।
श्री कृष्ण को पता चल जाता है कि अर्जुन अभी फिर से धर्म के इसमें आ गए हैं, क्योंकि कर्ण ने उनको धर्म का ज्ञान दिया है। ये ज्ञान तो सही है, धर्म ही है, ये ज्ञान बिल्कुल सही है जो कर्ण ने कहा है कि ऐसा नहीं ही करना चाहिए, मगर परिस्थिति और समय और स्थान को देखते हुए धर्म का निर्णय होता है। तो श्री कृष्ण देखते हुए फिर कर्ण को कहते हैं कि अच्छा हुआ है कि तुम्हें धर्म का ज्ञान याद आया। अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को जब विपत्ति आती है अपने जीवन में, तो लोग अपने किए हुए पाप कर्म को याद नहीं करते हैं, उनको दोष नहीं देते हैं, केवल भगवान को दोष देने लगते हैं, दूसरों को दोष देने लगते हैं। तो आप भी ऐसा ही कर रहे हैं। आपका धर्म कहाँ गया था जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था? द्रौपदी हस्तिनापुर के राजमहल में दरबार में खड़ी थी और पांडवों को आपने हरा दिया था। तो द्रौपदी एक तो अपने मासिक धर्म थी और धर्म में पालन कर रही थी, और इसलिए उसने कम कपड़े पहने थे। तो उस समय आपका धर्म कहाँ गया था? आपने कुछ हस्तक्षेप नहीं किया, आप उल्टा वहां पर हंस रहे थे। आपने द्रौपदी को ये कहा कि अभी पांडव तो हार गए हैं और पांडव हमारे दास बन गए हैं, तो अभी आप किसी को भी यहाँ से अपना नया वर चुन लीजिए। द्रौपदी, आप हंस रहे थे। उस समय आपका धर्म कहाँ गया जब वारणाव्रत में आपने, आपके जो मित्र है दुर्योधन ने, उसके भाइयों ने पांडवों को जलाने का प्रबंध किया था, षड्यंत्र रचा था। उस समय आपका धर्म कहाँ गया जब भीम को भी वहां पर विष पिलाने का प्रबंध किया था दुर्योधन ने, जब छोटे थे, तभी आपका आपका कहाँ गया था वो धर्म? तो ये सब उनको फिर याद दिलाते हैं। और फिर कर्ण का जो यहाँ पर वर्णन है, कर्ण ये सब सुन के उनका मुंह नीचे गिर जाता है, उनके पास कोई उत्तर ही नहीं है। इसका अर्थ ये देखा जाना चाहिए कि जो श्री कृष्ण ने कहा है वो परम सत्य है, और तभी कर्ण का मुंह नीचे गिर जाता है, शर्म के मारे लज्जा आ जाती है कि मैं क्या उत्तर दूं। उन्होंने जो कहा है वो सत्य ही है, इसका प्रति उत्तर मेरे पास है ही नहीं, जबकि उनको भी शास्त्र का पूरा ज्ञान था और उनके पास सामने तो स्वयं शास्त्र साक्षात खड़े हैं, श्री कृष्ण स्वयं शास्त्र है। तो उन्होंने ये सब उनको सुनाया और फिर कर्ण शांत हो जाते हैं, और फिर वह अर्जुन को कहते हैं श्री कृष्ण के, भाई तुम जल्दी से दिव्य अस्त्रों का उपयोग करो और कर्ण को सीधे यम के द्वार में पहुंचा दो। ये उचित नहीं है, आपको ये इस समय आपको ठहरना, आपको इसमें राह देखना कि वो ऊपर आ जाए। तो आप जल्दी से उस पर प्रहार करो और इनका अंत जल्दी से कीजिए, ताकि हम युद्ध जल्दी से जल्दी जीत सके, हम विजय हो जाए। तो इसका जो अर्थ निकाला जाना चाहिए, तो कृष्ण भगवान ने जो कहा है, राज दरबार में सब लोग थे और द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, तो बहुत बड़ा पाप हो रहा था। तभी कर्ण भी चुप थे, भीष्म पितामह भी चुप थे, और विदुर भी चुप थे। विदुर तो उनको कह भी रहे थे मगर कोई नहीं मान रहा था, राजा की आज्ञा कोई नहीं मान रहा था। भीष्म ने भी कहा था मगर राजा नहीं मान रहे थे। और कर्ण जो थे वह दुर्योधन के साथ में लेके आनंद ले रहे थे इस अवसर का, और इसी के कारण यहाँ पर उनको संबोधित करते हुए श्री कृष्ण ने कहा था कि आप में तो सामर्थ्य था, आपको पता भी था कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, आपने अपने मित्र को क्यों नहीं रोका? संभवतः अगर वो अपने पिता की नहीं मान रहे थे, माता की नहीं मान रहे थे, भीष्म पितामह का स्वयं आदेश नहीं मान रहे थे, महामंत्री विदुर का भी आदेश नहीं मान रहे थे, मगर कदाचित आप अगर उनको समझाते तो वो मान जाते। वो आप पे बहुत ही अधिक निर्भर है और थे भी। तो आपने अगर उनको बचाया होता तो कदाचित ये अवसर नहीं आता। तो आपने ये नहीं किया, और फिर उनको ये भी सुनाते हैं कि जो छल कपट से द्यूत में शकुनी दुर्योधन ने युधिष्ठिर और पांडवों को हरा दिया, क्योंकि युधिष्ठिर को तो द्यूत खेलना आता ही नहीं था, पासों में उनकी निपुणता नहीं थी और शकुनी की थी। तो ये आपने समक्ष, आपके समक्ष ही हुआ है, तो आपने तभी क्यों कुछ रोका नहीं, अपने मित्र को क्यों नहीं रोका, मामा जी को क्यों नहीं रोका, दुशासन को क्यों नहीं रोका? आपको अगर रोकना था, आपका भी क्षत्रिय धर्म था, तब कहाँ गया था?
आपके भीतर वो एक ड्यूटी थी, आपका कर्तव्य था एक क्षत्रिय होने के नाते कि आप अपने मित्र को समझा सकते थे, मगर आपने ये नहीं किया। तो ऐसा क्यों नहीं किया? तो ये जो संदेश है वो हमें ये सिखाता है कि जब भी हमारे समक्ष कोई अधर्म घट रहा हो, कोई घटना ऐसी घट रही हो, अगर हमारे सामर्थ्य में है, अगर हमारा कर्तव्य है और हमारे सामर्थ्य में भी है, तो हमें अगर हस्तक्षेप करने की अनुमति होती है सामर्थ्य के आधार पर, तो हमें करना चाहिए। हमें अगर कर सकते हैं तो हमें उसको रोकना चाहिए, इतना तो हम कर ही सकते हैं। और अगर हम नहीं करते हैं तो उस समय फिर हमसे भी अधर्म हो जाता है। जैसा खास लिखा है मनुस्मृति में कि अगर राजा राजा की कुर्सी पे बैठा है, अगर राजा भी न्याय नहीं करता है किसी याचक का, तो राजा से भी अधर्म हो जाता है और राजा को भी अधर्म का दंड भोगना पड़ता है। तो ये खास करके मनुस्मृति में बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है, इसको अंडरलाइन करके पढ़ना चाहिए। और अगर राजा के राज्य में अगर कोई भी नागरिक हो वो भी अधर्म कर लेता है, तो उसका जो पाप है उसको अगर दंड नहीं मिलता है, तो उसका जो भाग है, अमुक भाग है उसके पाप का, वो राजा के ऊपर भी आ जाता है। तो राजा को भी भोगना पड़ता है, और राजा को भोगना पड़ता है, मगर उसका अर्थ ये हुआ कि राज्य धीरे धीरे निर्बल होता जाएगा, और राज्य ही निर्बल हुआ तो दूसरा सामने वाला राज्य आकर अटैक कर देगा, तो ये राजा हार भी जाएंगे। तो राजा की जो शक्ति होती है वो वास्तव की शक्ति है, वो धर्म के माध्यम से ही मिलती है। धर्म की अगर रक्षा राजा करेंगे तो ही धर्म राजा की रक्षा करेंगे। और धर्म की रक्षा राजा कैसे करता है कि न्याय देकर। अगर उसके पास कोई याचक आता है, उसके राज्य में चारों वर्ण हैं, वो अपने अपने निर्धारित ड्यूटीज को निभा रहे हैं कि नहीं, ये देखना राजा का अधिकार है। अगर ये नहीं करते हैं तो राजा भी दंडनीय है, दंड का पात्र राजा भी बनता है। उसको दंड कौन देता है? उनके गुरु, कुल गुरु जो ब्राह्मण होते हैं वो देते हैं, और धर्म भी दंड देता है, प्रकृति दंड देती है। तो ये हमें इससे सीखना है कि धर्म अधर्म कब बन जाता है, जब भी हम ऐसी परिस्थिति में हो कि हम हस्तक्षेप करके सामने वाले दिखते हुए अधर्म को रोक सकते हैं, उतना हम में कर्तव्य है और सामर्थ्य भी है। तो अगर हम करें तो रुक जाने का संभावना है, तो हमें जाके उसको रोक देना चाहिए। तो फिर हमने धर्म का पालन किया, तो फिर हम अधर्मी नहीं गिले। अगर हमने कुछ देखा ऐसे अधर्म होते हुए और हम वहां से चल दिए, तो भी ये हमसे अधर्म हो गया ऐसा शास्त्र कहता है। क्योंकि ये मानवता की दृष्टि से धर्म अधर्म निर्धारित होता है, समय स्थान और हमारा कर्तव्य जो होता है उसको देखते हुए हमको धर्म अधर्म का हमको प्रेरणा मिलती है, और हमको उसकी ड्यूटी का हमको अनुमान मिलता है कि हमें ये करे तो हमको धर्म का पुण्य मिलेगा, अगर हम ये करें तो हमको अधर्म का पाप भोगना पड़ेगा। और धर्म जो है वो अधर्म ऐसे हो जाता है कि अगर हम ऐसी कोई परिस्थिति में हो कि भाई समझो इसी इसी का उदाहरण ले ले, कर्ण का ही उदाहरण ले ले कि भाई धर्म में ये तो कहा गया है कि निशस्त्र सैनिक पर वार नहीं करना चाहिए, मगर अर्जुन ने फिर भी अंजलि का अस्त्र से कर्ण को मार डाला, उसका मस्तक काट दिया जब वो अपना पहिया ऊपर उठा रहे थे। तो ये शास्त्र के दृष्टि से अधर्म है, मगर ये अधर्म धर्म क्यों कहा गया है, इसका ये अर्थ है कि अगर कि कर्ण का जीवन काल हम देखें, तो कर्ण ने उसके पूरे जीवन में बहुत सारे अधर्म होते हुए देखे। अधर्म उसको पता था कि ये हो रहा है, उसका ही मित्र अधर्म कर रहा है, उसको रोका भी नहीं, उसमें साथ भी दिया। अधर्म का साथ देने को भी अधर्म करने का दंड मिलता है। तो ये जो पिछला जीवन था कर्ण का, वारणावत का प्रसंग है, द्यूत क्रीड़ा है, द्रौपदी वस्त्र हरण है, उसको विष पिला गया है, बहुत सारे जो फिर पांडव जब वनवास में होते हैं तभी जयद्रथ द्रौपदी का हरण भी करके लेके आते, तभी भी कर्ण को पता होता है। और अंत में फिर वह
जो अज्ञातवास जो 13वां वर्ष होता है उसमें भी वो छुपे रूप से रहते हैं, उसमें भी कर्ण को पता होता है जो षड्यंत्र दुर्योधन शकुनी बनाते हैं। तो कर्ण ने बहुत सालों तक अधर्म का साथ दिया है, उसको देखते हुए अगर कर्ण को जीवित रखा जाए तो फिर ये युद्ध ही नहीं टलेगा। और युद्ध का मुख्य जो सेनापति है, जो मुख्य जिसके कारण युद्ध हो रहा है, वो दुर्योधन है। दुर्योधन भी अधर्म ही है, अधर्म का पक्षधर ही है, तो उसका साथ देने वाला ये अधर्म ही है। तो अधर्मी को अधर्म के माध्यम से मारना ये धर्म है, ये शास्त्र हमें कहते हैं। ये तो एक केवल छोटा-सा प्रसंग है जिससे हमें ये सीख मिलती है। इसके भी बहुत अधिक गूढ़ रहस्य है जो मुझे भी अभी तक पता नहीं है, मैं भी पढ़ रहा हूँ। मगर ये एक छोटा-सा प्रसंग है जो महाभारत से लिया गया है। ऐसे एक और प्रसंग है, आप देखेंगे कि द्रोणाचार्य के वध में हुआ है और उसमें भी अ, दुर्योधन द्रोणाचार्य को बोलना पड़ता है युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर से बुलवाना पड़ता है कि भाई अश्वत्थामा का वध हो चुका है। और युधिष्ठिर जो पूरे जीवन सत्य ही बोलते रहे क्योंकि वह धर्म स्वयं है, तो उनसे वह अर्धसत्य बोला गया है, नरोवा न कुंजवा, तो उसने शांति से बोला जो किसी और को सुनाई नहीं दिया मगर केवल उनको ही सुनाई दिया। तो ये भी एक अधर्म हुआ, मगर अधर्म को काटने के लिए अधर्म का उपयोग किया जाए तो वो धर्म ही है। तो ऐसा ये शास्त्र हमें सिखाता है। तो धर्म कब अधर्म बन जाता है, वह समय, स्थान और कर्तव्य पर आधारित है, और अधर्म भी धर्म बन जाता है समय, स्थान और कर्तव्य को लेकर। तो ये इस वीडियो का मैसेज है, बहुत सुंदर और सूक्ष्म मैसेज है। ये प्रसंग से हमें यही सीखना है कि अगर हमारे जीवन में भी, हमारे घरों में समझो कोई अधर्म हो रहा है, अगर माता-पिता में इतना लाड है अपने पुत्र के लिए, मगर पुत्र उनको पता है कि बिगड़ रहा है, मगर माता-पिता उनको कह नहीं रहे हैं कि नहीं छोटा है, बड़ा होके समझ जाएगा, उनकी उनकी उम्र है आनंद करने की, तो आनंद कर लेने दो। अगर उस समय उसको अगर नहीं रोका जाएगा, तो वो माता-पिता से अधर्म होगा, और बड़ा होके अगर वो जब व्यसन में इतना डूब जाएगा और फिर माता-पिता जागेंगे, आँख खुलेगी, तब तो बहुत देर हो चुकी होगी। तो ऐसे पुत्र को जो माता-पिता का मानता नहीं है, उसको फिर दंडित करना भी धर्म कहा गया है। जैसे श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले जब भी दूत बनकर गए थे कि भई युद्ध रोक दीजिए, तभी कोई मानते नहीं, और अंत में श्री कृष्ण धृतराष्ट्र को कहते हैं कि आप कृपा करके आपके ये बड़े पुत्र दुर्योधन को काल कोठरी में बंद कर दीजिए, तो ही ये युद्ध टल सकता है। मगर अगर नहीं करेंगे तो इसके पीछे-पीछे आपके 99 पुत्र भी मर जाएँगे। तो अगर धृतराष्ट्र ने काल कोठरी में एक ही पुत्र को बंद किया होता तो 99 बच जाते, दुर्योधन भी बच ही जाता, उसको सजा मिलती, दंड भोगना पड़ता, मगर किसी ने नहीं मानी तो एक को बचाने के लिए फिर 100 के 100 गए। तो ये धर्म अधर्म कहाँ कब बदल जाता है, ये बहुत ही सूक्ष्म और सटल सटीक संदेश हमें शास्त्र देते हैं। ये बहुत सारे शास्त्रों में है, मगर इसको समझने के लिए हमें हमारे कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए, समय और स्थान का भी ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, अधर्म क्या है, ये जानने के लिए हमको अपने गुरु के पास जाना पड़ता है। गुरु के चरणों में बैठ के ही हमें ये शिक्षा और ज्ञान मिलता है, और शास्त्रों के माध्यम से फिर हमें ये ज्ञान अपने आप अभिव्यक्त करता है। तो ऐसे ही हमें इस सूक्ष्म संदेश का ज्ञान मिलता है, धर्म और अधर्म कब एक दूसरे में बदल जाते हैं। तो ऐसे ही अगर सूक्ष्म संदेश, मैसेजेस और वीडियोस आपको पसंद है तो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड Govardhan Mutt is a beautiful channel on this platform called YouTube. You can and you must follow Govardhan Mutt. I would all request you to follow Govardhan Mutt. उसको एक को फॉलो करने से आपको बहुत सारा शास्त्र का ज्ञान मिलेगा, सीधे सीधे शास्त्र ही आपसे बात करेंगे, और उसको अगर आप जीवन में उतारते हैं तो आपका मंगल ही मंगल और कल्याण ही कल्याण निश्चित है। शिव शंकर प्रलयंकर।